Okay, let's begin. Morning, everyone. Yeah. Online guys, can you see my screen? Yes, sir. Business. Right. So in the last session, what we have seen the time intelligent functions, right? Yes, sir. And I have given you some assignment for color coding, right? Most of you have seen done. Yes, sir. From online, anybody would like to share your screen and show me the code? Yeah. Prince, Pooja. Yes, sir, I can share. Yeah. Just sharing it. Yes. But is the screen visible? Yes. Now it is not. Yes. Screen should be set as the screen. Just- Should be on over the how gets me? Is it visible now? 1 minute. अभी शो नहीं कर रहा है ऑप्शन इसलिए क्या आ रहा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग It's showing you are screen sharing. It's not share. It's showing See, as you are screen sharing. शेयर नहीं हो रहा है. 1 सेकेंड रुक जाओ. Let me stop and share it. फिर से करो एक बार. Yes, sir. Just is it visible now? Not yet. Yeah, now I can see. हम्म. कैसे किया आपने? So for so first I created the table. Of Okay. this acquire within the in this month. Okay. So यहाँ पर I will go to the ribbon mill. It says just a second, it's not going now, so I'm able to see the ribbon. So I created a table manually. Okay. So by means I inserted the column names and the entries in that. Right. Then then this report view. I selected the visual. I placed the entry in facts in the columns, product name, planned expense, and actual expense. Then there is a Okay. row, there is a below arrow here. I right clicked it
conditional formatting, then background color. Format style I selected as rules, and then I put two rules here. If values is greater than 0 and less than 100, or we can put it as maximum, it will show it as blue. Which field you are taking? What is the sum of difference? I just added a measure where I'll calculate the difference between the planned expense and actual expense. I'm not showing it here, but I have calculated it. On the basis of this difference column, Okay. I'm putting the conditional formatting. If the sum of difference is less than 0, it will show green, and if it is equal to or more than 0, it is showing red. Okay. Okay. Then I just hided the rest. Right. Any other way anybody did? Yes, sir. मैंने दूसरे तरीके से किया था, इस वाला कंडीशन लगा के। अभी सर सो रहा है स्क्रीन? हाँ, हो रहा है। सर सर मैंने एक नया मेजर बना के किया है। यस सर, मैंने एक के बाद एक। ओके, पहले प्रिंस आपका होने के बाद देन आई विल कम टू। अमित, आप अगर शेयर करना चाहोगे पहले से रेडी रखो, ठीक है? सर मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सर बोल सकता हूँ क्या क्या मैंने स्टेप बाय स्टेप कर सकता किया है। हाँ, स्क्रीन शेयर करके बताना आपने क्या क्या किया है। इस प्रिंस दिखाने के बाद आप स्क्रीन शेयर, यस सर। यू कैन शो तो मी। सॉरी सर, मैंने मोबाइल से सर क्लास अटेंड किया है, क्योंकि मैंने अभी मेडिकल आया था, मेरा भाई को मलेरिया हो गया था। अच्छा, ठीक है, फिर कल आप बताना, ठीक है? क्योंकि आप जब तक नहीं दिखाओगे मैं नहीं समझ पाऊंगा आपने क्या किया है, ठीक है? राइट। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा तो चलेगा क्या? मैंने जो मेजर बनाया था, मेजर के बाद उसको लेकर फिर जो फील्ड वैल्यू, हमारे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो फील्ड वैल्यू वहां पर डाल के जो किया था वहां पर बना, बोल सकता हूँ क्या स्टेप बाय स्टेप? नहीं, वैसा नहीं चलेगा। कल आप स्क्रीन शेयर करके दिखाना, ठीक है? ठीक है सर। सर मैं कोशिश करता हूँ पहुंचने में 10 मिनट में घर में। ठीक है। ओके, हाँ प्रिंस आप बताओ। यस सर। सर मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है कि मतलब अगर यहाँ पर पहले प्रोडक्ट, पहले बात एक बार इसको क्लोज करो। हाँ, आपका जो वैल्यूज देख रहे हैं, ठीक है, आपने एक्चुअल एक्सपेक्टेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स करके रखा है। तो यस सर, आपका कंडीशन क्या है यहाँ पे? सेल्स। तो कंडीशन सर मैंने ये लगाया है कि अगर एक्सपेक्टेड जो एक्चुअल सेल्स है या तो इसके एक्सपेक्टेड सेल्स के बराबर हो या तो उससे कम हो तो जेड आएगा और ग्रीन आएगा, वरना रेड आएगा। इसी एक्चुअल सेल्स अगर ज्यादा है या बराबर है सिलेक्टेड मतलब ये सेल्स के, एक्सपेक्टेड सेल्स के, तो ग्रीन वरना रेड। ठीक है, आपके कंडीशन वाइज ठीक है, मगर रिक्वायरमेंट मैंने कुछ और दिया था, बट दैट इज फाइन। ओके। उसके बाद यहाँ पर जाकर फॉर्मूला दिखाओ। फॉर्मूला। अ, हाँ, पहली बार सिलेक्टेड वैल्यू मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, आज बताऊंगा, ठीक है? राइट, सिलेक्टेड वैल्यू क्या बोल रहे हैं आप? टेबल का नाम है हम्म एक्चुअल सेल्स। टेबल का नाम ये प्रोडक्ट टेबल ही है, मैंने रखा ठीक हुआ है। है। हाँ हाँ, एक्चुअल सेल्स अगर ज्यादा है। सेल से ज्यादा है देन आप बोल रहे हो ग्रीन, नहीं तो रेड। यस सर। ठीक है। इसके लिए आप सिलेक्टेड वैल्यू क्यों यूज किया? तो सिलेक्टेड वैल्यू इसलिए किया कि मतलब ये सिलेक्टेड वाला है ना, जो मतलब अ, मतलब ये रहेगा कॉलम, ये इस कॉलम के बिहाफ पे इस कॉलम पे कैलकुलेट कर सके, इंटर इंटर रिलेशन बनाने के लिए।
एक बार फिर से फॉर्मूला ओपन करो। हाँ, अभी यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू हटाओ, वो प्रोडक्ट टेबल के सामने ब्रैकेट हटाओ, यस सर। स्टार्टिंग पे भी, एक्चुअल सेल्स के बाद भी, लाइन नंबर 3 में ग्रेटर देन इक्वल टू से पहले ब्रैकेट। हाँ, राइट। तो अभी आप क्या बोल रहे हो? एक्चुअल सेल्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेड सेल्स होता है, ग्रीन चाहिए, नहीं तो रेड चाहिए, राइट? यस सर। अभी एंटर करो। हम्म, सर एरर को देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या गलती हो सकती है? ये चीज नहीं समझ में आया करती वो कोशिश। एक सेकेंड रुको। अगर एक्चुअल सेल्स इज ग्रेटर देन expected sales, then green arrows will. Hmm. तो हमें दिया गया था कि एक्चुअल एक्सपेंस हाँ, सेल्स में उल्टा हो रहा है ना इसलिए। हाँ, उल्टा ही लिखा है ना। उल्टा ही लिखा है, दैट इज फाइन, बट ये काम क्यों नहीं कर रहा है? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अगर आपका एक्चुअल सेल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेड सेल्स इज ग्रीन, और ओके, ओके, ये मेजर में काम नहीं करेगा, क्योंकि हर एक रो का अलग अलग वैल्यू आएगा, राइट? हर एक रो का अलग अलग वैल्यू जब आएगा, आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। यस सर, क्योंकि एक काम किस करो, तरह जी। इसके इसके सामने सम लिखो, प्रोडक्ट टेबल के सामने सम ऑफ एक्चुअल सेल्स। नहीं, नहीं। हाँ, शुरू में से। क्या एरर आ रहा है? इसको पूरा हटा के फिर से लिखो एक्चुअल सेल्स, तो पूरा एक हटा दो। अभी हाँ, आ गए। नहीं, नहीं, स्टार्टिंग से लिखो, ऐसा तो समझ में नहीं आएगा। वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, सिर्फ लाइन 3 का सम ऑफ एक्चुअल सेल्स जो है उसको हटाओ। एक्चुअल सेल्स, हाँ, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू सम ऑफ, हाँ, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अभी एंटर करो। सिंटेक्स उसके बाद कॉमा आना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड सेल्स के बाद। हम्म, ठीक है, विजुअल को नहीं। हाँ, अभी ठीक से काम कर रहा है। हम्म, नहीं, जो मैंने दिया था वो क्या था? एक्सपेक्टेड, प्लान्ड एक्सपेंस एंड एक्चुअल एक्सपेंस। So expense should be always less. What he has done, sales, sales should be always higher side. Right? हमने जितना एक्सपेक्ट किया था सेल्स, उससे अगर ज्यादा होता है, दैट इज गुड फॉर अस। सो दैट्स, हाँ, दैट्स व्हाई हियर अगर सेल्स ज्यादा है, ग्रीन हो रहा है, राइट? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, यस तो पहले आपको एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, उस कंडीशन को यूज करके यू आर गोइंग टू अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट? तो यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू की जरूरत नहीं था, क्योंकि हमने वो सीखा नहीं है। यस। ओके, राइट। एनी अदर वे
Anybody has done? यहाँ पे दिखाओ एक बार क्या क्या आपने। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मतलब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं, मतलब एक जनरल क्वेश्चन है हाँ पूछो। सर। मतलब मैं प्रोजेक्ट बना रहा था यूट्यूब से देख के, ठीक है। तो यूट्यूब वाला जो बंदा है उसने ये वाला ये स्लाइसर सिलेक्ट किया, तो उसके में ऑप्शन ढेर सारे आ रहे थे, बट मेरे मैसेज पर दो यही तीन ऑप्शन आ रहा है, जबकि उसके में सर इतने ऑप्शन आ रहा है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और वो इसको सिलेक्ट कर रहा है स्लाइसर को, तो उसके में इतने ऑप्शन आ रहे हैं, मेरे में सिर्फ तीन ऑप्शन आ रहे हैं फॉर्मेट। ये कौन सा स्लाइसर है? एक बार आप इसको आपके विजुअल में जाओ। हाँ अभी विजुअलाइजेशन पेन में विजुअल दिखाओ। अभी नीचे से सेकेंड लाइन में फोर्थ वाला स्लाइसर को सिलेक्ट करो। नीचे से सेकेंड लाइन में फोर्थ वाला, हाँ ये हाँ सिलेक्ट करो। नहीं सर, उसने वही वाला लिया था, उसने वीडियो में ही यही वाला लिया था। अभी इसके ऑप्शन एक बार देखो। अच्छा हाँ ठीक है, वही वाला लिया होगा। हाँ, ठीक है, मतलब डिपेंड्स की कौन सा स्लाइसर उन्होंने लिया है। यस सर। जो भी लो, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस सर। ऐसा नहीं है कि यही स्लाइसर लेना है या वही स्लाइसर लेना है। यस सर। ठीक है। गॉट इट सर। हम्म तो ଆମେ କେମିତି हाँ କରିବା? ठीक है, स्टोर कर लूंगा। आगे कुह केମିତି कौन डिफरेंस कौन? कंडीशन हाँ तापरे एटू कोन जागारे कलर कोड लिखि दिली मेंशन करतो तेबे एटा डेटाबेस रहला देन इम्प्रेस हो गयो अदरवाइज एक्टिवेट ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିଲ ନା ଏବେ। हाँ हाँ if switch एका। okay so sometimes what will happen ଏବେ माने कलर कोडिंग, ओके कलर कोडिंग पार्ट। सर मैंने साम की जगह मैथ्स यूज करी। हाँ इट विल वर्क। मैक्स मिन सब काम करे यही केस रे। ओके राइट। सो कलर कोडिंग जनरली, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ऑनलाइन? Yes, sir. यस सर। ओके सो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर कोडिंग आपने किया है, ओके दूसरे जगह पे फिर से कलर कोडिंग करना है और दोनों सेम कलर रहना है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम रहना है। कैसे हम लोग वी विल अंडरस्टैंड इफ इट इज द सेम कलर और नॉट? सो कुछ कोड्स होते हैं, ठीक है। आप यस सर। हेक्स कोड्स। एक्सपोर्ट। सो अगर आप गूगल सर्च करोगे हेक्स कोड्स एंड इमेजेस नो, आपके पास बहुत सारे कलर्स के कोड आएंगे। हाँ राइट, लाइक दिस यू विल गेट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कलर डिफरेंट डिफरेंट कोड विल बी देयर। ठीक है, उस कोड को आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई एम राइटिंग ए मेजर, ओके if sum of planned expense is planned expense अगर what greater than or equal to sum of actual expense, ठीक है। if the planned expense is greater than, क्या था हमारा, if it is planned is greater than actual then red चाहिए, right? I will give it as 1, यस सर। ओके या फिर 0। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा प्लान्ड एक्सपेंस जो है उस वो अगर ज्यादा होता है एक्चुअल से, दैट मीन्स नॉन फेवरेबल, राइट। अगर वो ज्यादा होता है देन आई विल गिव इट एज 1। अगर प्लान्ड मेरा इक्वल टू एक्चुअल होता है या फिर लेस देन एक्चुअल होता है देन आई एम गिविंग 0।
ओके, विच इज द फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे? 0 ना? इक्वल टू नहीं लगाया था। सेकेंड कंडीशन विल बिकम इक्वल टू ओनली, नो? ग्रेटर देन Yes. नहीं है, मतलब इट कैन बी इक्वल टू और लेस देन आल्सो। क्या ऐसा होता है? इसका मतलब क्या है? अच्छा मेरा हाँ। अगर प्लान्ड एक्सपेंस इज ग्रेटर देन एक्चुअल एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल मेरा प्लान्ड एक्सपेंस 100 है, मेरा एक्चुअल एक्सपेंस 110 है, ओके, देन इट इज 1। एनी अदर केस इट विल बी 0, ओके? एनी अदर केस इट विल बी 0। नाउ एक्चुअल एक्सपेंस के ऊपर वी विल अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड कलर, फील्ड वैल्यू, All data. हमने जो जो फील्ड हमने बनाया। The field cannot be used because matching data type is required. What is the problem with data type? Whole number, whole number. Whole तो number. मैंने इस टाइप का ही बनाया था, बट उसमें रिजल्ट तो आ रहा था, तो नई टेबल में आ रहा था, सेम में कलर नहीं हो पा रहा था। एक सेकेंड देखते हैं। It is giving no problem क्या है? ठीक है, रूल्स में जाके कर सकते हैं। CF अगर if the value is greater than or equal to 1, रूल क्या लिखेंगे? सर सॉरी सर। या फिर आई विल से सम ऑफ प्लान्ड एक्सपेंस, प्लान्ड अगर ज्यादा है आई विल टेक इट एज -1 एंड दिस वन एज 1। ठीक है? सॉरी सर मैं अभी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? नहीं अभी नहीं, मैं बताऊंगा, रुक जाओ। हाँ जी सर, अभी मैं पहुंच गया। सॉरी सर, मैंने क्लास बोर्ड में करता। हाँ तो इफ माई if the value is greater than or equal to 0 and less than or equal to maximum, then मेरा क्या होना चाहिए? ग्रीन कलर होना चाहिए, राइट? If it is greater than equal to minimum and less than 0, then it should be red color. Number क्या प्रॉब्लम है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 and less than equal to max, green. If it is greater than or equal to minimum and less than 0, then it should be is the problem. तो CF वहीं पर ही प्रॉब्लम है। Okay, अब if होगा। it is greater than equal to 0 and less than or equal to maximum, मतलब पॉजिटिव है, राइट? यस सर। पॉजिटिव या फिर 0 होने से ग्रीन बोल रहा हूँ, नेगेटिव होने से रेड बोल रहा हूँ, राइट? ओके, सो अभी ये कलर जो है, इफ आई वांट टू गिव इट ए स्पेसिफिक कलर, जैसे कि
यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर हम लोग वी वांट टू टेक, मे बी दिस ग्रीन कलर। ओके, इसका कोड क्या है? दिस वन, हैश डबल थ्री डबल सी डबल थ्री। ओके, so what you can do here, here ऑटोमेटिकली एक कोड लेगा, इस कोड को आपको चेंज करना है। ठीक है, हैश डबल थ्री डबल सी डबल सी डबल थ्री। डबल थ्री। ठीक है, सो इट विल एग्जैक्टली टेक दैट कलर ओनली। ये जो कलर है एग्जैक्टली जो हमने जो कोड लिया था एग्जैक्ट कलर लेगा। हमको लाइट चाहिए या डार्क चाहिए या जो भी चाहिए, बेस्ड ऑन दिस वी कैन सेलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर आई वांट टू सी, मे बी दिस वन। ओके, एनीथिंग whatever, you just need to take the code. For example, ये वाला डबल एफ डबल थ्री डबल थ्री। ओके, so I will come here, hash डबल एफ डबल थ्री, right? Here when you apply here, no, এটা আসলা কোটা গ্রিনটা। हाँ, so when you click here it, okay, जो the column where you want to apply the formatting, okay, this is the actual expense column, so this is the actual expense column. Okay, okay, it drop down, then conditional formatting. Here is the option. Which option? So browser पे जाएगा हम उसके बाद चलते हैं। Eta, huh? It just you need to Google it. Okay, hex codes. Okay, hex codes per le, you will see, go to images, and then you will see so many places, so many colors will be there. You can take any one. Okay, anyone you can take, for everything you will have some codes. Code अलग नहीं है वो. Okay, then you just need to come here, background color, यहाँ पे मोर कलर्स में यहाँ पे आपको कोड चेंज करना है। इससे करने से क्या होगा, इन द रिपोर्ट एनीवेयर यू वांट टू अप्लाई रेड कलर और ग्रीन कलर, यू कैन एग्जैक्टली सेलेक्ट द सेम कलर। इफ यू रैंडमली पिक, नो, every time you will not be able to pick the same color. Okay, following online? ये सर। Yes, sir. हाँ, अमित अभी आप शेयर करो। जी सर। तो मैंने जो दिया था उसमें अंदर जाकर कलर देना ही नहीं पड़ा था, उसमें सिर्फ मेजर उसको भीतर select- हाँ, सेटा ऑटोमेटिक पिक करिए। सर मेरा हो रहा है। हाँ, एक सेकेंड सेट। हाँ हाँ विजिबल है। सर ये देखिए मैंने ए वाला सब मेजर बनाया था। हाँ, ओके, दिखाओ। ओके, ये वाला बनाया था हम्म और ये वाला बनाया था, हम्म ये वाला बनाया था। तो आपने तीन अलग अलग मेजर बनाए। जी, यहाँ पर हम्म बनाने के बाद हम्म हमको दिखाना है सम ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। हम्म यहाँ पर मैंने गया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कहाँ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड कलर, हम्म वहाँ पर जाके फील्ड वैल्यू का यहाँ पर, और कलर फॉर्मेटिंग जो बनाया था वहाँ पर उन्हें वो कर दिया, वहाँ सेम पर हो थिंग। गया। ओके, सेम थिंग, बट आपने अलग अलग तीन डिफरेंट मेजर्स बनाए हैं जो कि एक ही वेरिएबल में बन सकता है। हाँ, एक ही जगह पे यू कैन क्रिएट इट। शायद मैंने एक वेरिएबल कहाँ पर बनाया था, शायद हम्म शायद अलग कोई मेजर टेबल में शायद रह गया है शायद। सॉरी सर, कहाँ पर बनाया था वेरिएबल, दैट्स ओके, स्विच फाइन। करके। हाँ, एक मेजर में बनाओ, मल्टीपल मेजर बना के करो, इट इज द सेम थिंग, बट ऑप्टिमम वे विल बी टू क्रिएट ए सिंगल मेजर। सर ये सही है या फिर गलत है? आप बताओ सही है कि गलत है।
मैंने तो किया, चेक किया तो सही आ रहा है। तो सही है। आपको मैंने रिक्वायरमेंट दिया था, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको भी चेक करना है ना, सही है ना गलत है। हाँ, आपके सही आ हिसाब रहा से है। क्या लग रहा है? सही है। हाँ। लेकिन मैंने करने का तरीका सही है या फिर गलत है वो समझ। हाँ, मैंने अभी दिखाया है ना कैसे करना है। आपने जो किया है सेम चीज ही मैंने भी किया है, बट मैंने एक ही नहीं सिंगल सर, मेजर में बनाया। सॉरी सर, मैंने गया था, हॉस्पिटल गया था वो हॉस्पिटल पर मैंने सिर्फ क्लास ज्वाइन कर किया था और ब्लूटूथ लगा दिया था, मैं सिर्फ सुन रहा था। और हम्म। मैं नहीं देखा आपने क्या क्या किया है। ठीक है, आप बाद में देख लेना, मैंने सेम मेथड में किया है बट सिंगल मेजर में किया है। ये सर। ठीक है। ओके, राइट। थैंक यू सर। ओके। ओके, नाउ लेट अस। वहाँ क्या आपको करना है, सीट का डाटा और मैं डाटा का फील्ड स्पेलिंग में जा सकते हैं। हाँ, feels somehow it was not taking, I don't know. माइंड में सीट If I am trying to take the direct field, somehow it is not taking, it is not showing. तो वो मेजर्स में ना हो। This field cannot be used because the matching data type is required. हाँ। -1 वहाँ की जगह टेक्स्ट भी लगा दो, ग्रीन और रेड। वो ऑटोमेटिक पिक करेगा ना कलर, हाँ, डार्क बाहर कलर आ का जो जाएगा। टेक्स्ट रहेगा उसका लगता है तो भी लेकिन काम करेगा -1 कलर कोड ऐड। हाँ, एक एटा करे परियो तमे व्हाट यू कैन डू इज दिस कोड यू कैन डायरेक्टली मेंशन देयर, ये वाला ग्रीन का कोड है राइट, so you can go here, green is positive one right, like this you can mention. Similarly red, for example double F double three double three, okay, double F double three double three, okay, right. Now I can go here, conditional formatting, background, field value, all data. F, okay, that's it. ओके, इफ ये टोटल ऊपर भी यदि मते अप्लाई कर, अगर टोटल के ऊपर भी मुझे अप्लाई करना है तो अगर मेरा टोटल ज्यादा है प्लान से, जो वैल्यू आपको दिख रहा था उसके नीचे वैल्यू का टोटल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड कलर, यहाँ से जहाँ पे अप्लाई टू वैल्यूज है ना, यू नीड टू सेलेक्ट वैल्यूज एंड टोटल, टोटल। then the same condition will be applied to your totals also. Sometimes people will ask you to apply it to totals also. ठीक है, राइट। सर बट वो जो सिलेक्टेड वाला था उससे मतलब और सिलेक्टेड से मतलब कैसे सही आ गया आंसर, मतलब वो। सेलेक्टेड भी करेक्ट ही है ना, आप सेलेक्ट, अभी यहाँ पे मैक्स लिखो, एक रो बाय रो हो रहा है राइट, तो हाँ। टेक सम ऑल्सो, आपका रिजल्ट 120 होगा P1 का और 130 रहेगा P1 का। अगर यस। आप मैक्स भी यूज कर रहे हो स्टिल इस रो में मैक्स वैल्यू यही है, और अगर मिन भी यूज कर रहे हो इस रो में ये एक ही है जो मिन भी है, तो आपका काम सम से भी होगा, मैक्स से भी होगा, मिन से भी होगा। सेलेक्टेड, सेलेक्टेड मतलब क्या है, ये वाला रो का वैल्यू क्या है, तो आप कुछ भी यूज करोगे वहां पे वो काम करे, क्योंकि ये सिंगल रो है। लेट मी एक्सप्लेन यू सेलेक्टेड वैल्यू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे, ठीक है, यस सर। राइट। ये सिलेक्टेड वैल्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट विल बी वेरी यूजफुल। कुछ भी आपको डायनेमिक करना है तो यू विल बी यूजिंग द सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन, ठीक है। सो लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल।
विदाउट मेजर्स बनाने को भी कर सकते थे आप जैसे, पर वो डायनामिक नहीं है। हाँ, स्विच फंक्शन लेके ये नंबर आने से दिस कलर, दिस नंबर, दिस नंबर। तो कल सुबह अगर हम लोग डेटा रिफ्रेश करते हैं, नया नंबर आता है, तब काम नहीं करेगा। ओके, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, ओके नाउ आई एम टेकिंग ए कार्ड विजुअल, जहां पे हम लोग क्या दे रहे हैं, सेल्स वैल्यू दिखा रहे हैं। ओके, सिंपल सेल्स वैल्यू हम लोग दिखा रहे हैं। उसके बाद आई एम टेकिंग ए स्लाइसर, जहां पे आई एम गोइंग टू गिव द ईयर कॉलम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, राइट। so when I select 2017, this data is related to 2017 का डेटा आ रहा है। अगर मैं 14 का सिलेक्ट करता हूं तो 14 का डेटा आ रहा है, राइट। सो समटाइम्स व्हाट विल हैपन, पीपल विल से कि मुझे यहाँ पे टाइटल चाहिए। ओके, द टाइटल शुड चेंज एज पर योर सिलेक्शन। ठीक है, अगर मैं 2016 सेलेक्ट करता हूं, यहाँ पे 2016 सेल्स ऐसा आना है टाइटल। अगर मैं 2015 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 2015 सेल्स वैसा आना है आपका टाइटल। ओके, आर यू फॉलोइंग ऑनलाइन? Yes, getting. Yes, sir. राइट। सो हाउ टू डू ये, दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन ऑल्सो। जनरली आई आस्क, व्हेन आई टेक इंटरव्यूज, आई आस्क जनरली हाउ टू क्रिएट डायनेमिक टाइटल्स। ठीक है, राइट। सो आई विल क्रिएट ए न्यू मेजर। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं दूंगा, मतलब इसमें मेजर बनाने की मतलब जरूरत है, मतलब इसके लिए बिना मेजर के कैसे बनाएंगे? टाइटल आप दोगे, बट डायनामिक कैसे करोगे बिना मेजर का? हाँ सर। हम्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप एक स्टैटिक टाइटल दे सकते हो, बट डायनामिक नहीं कर सकते अनलेस अंटिल यू राइट ए कैलकुलेशन। ठीक है, राइट। सो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका एसवी करके दूंगा, मतलब सिलेक्टेड वैल्यू। तो सिलेक्टेड वैल्यू, ये कौन सा कॉलम है? ईयर कॉलम वी आर टेक। तो मैं बोल रहा हूं इस वेरिएबल में जो भी सिलेक्शन होगा उसको स्टोर करो। ठीक है, मतलब इस कॉलम में अगर कोई भी सिलेक्शन होता है, मतलब ईयर कॉलम में कुछ भी सिलेक्शन होता है, दैट वैल्यू यू स्टोर इट इन दिस वेरिएबल। ठीक है, अभी ये काम कर रहा है कि नहीं, लेट अस ट्राई टू चेक। कैसे करेंगे? रिटर्न रिटर्न एसवी। एसवी, राइट। Now if I place this somewhere, it should give me 2015, right? जो मेरा सिलेक्शन है दैट इज द सेम वैल्यू इट इज शोइंग। अगर मैं यहाँ पे 16 सेलेक्ट करता हूँ, वो चेंज होना चाहिए, राइट। अगर मैं 17 सेलेक्ट करता हूँ, चेंज होना चाहिए, राइट। ओके, तो व्हाट वी आर गेटिंग एज पर द सिलेक्शन, जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं दैट वैल्यू इट इज स्टोरिंग हियर, राइट। राइट, नाउ हमको टाइटल में क्या दिखाना है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल और एक वेरिएबल बनाता हूं जहां पे मैं बोलता हूं ईयर। ईयर को मुझे कंकैटिनेट करना है यहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है, सो व्हाट विल बिकम, दिस विल बिकम, मैंने क्या किया, ईयर को कंकैटिनेट किया सिलेक्टेड वैल्यू वेरिएबल के साथ। सिलेक्टेड वैल्यू अगर 2015 है तो मेरा टाइटल क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अगर 2016 है तो क्या दिखेगा? ईयर हाइफन 2016। हाँ, वो टेक्स्ट वैल्यू है मेरा, दैट विल नेवर चेंज, दैट शुड बी एज इट इज। ठीक है, सो रिटर्न में क्या करेंगे? रिजल्ट। ओके, तो मेरा टाइटल ऐसा आ रहा है ईयर हाइफन ये, इसमें से नीचे वाला जो है कैटेगरी लेबल उसको मैं हटा देता हूँ। ओके,
and this one also I will reduce the size to maybe 12. Right? ओके, इसको लेके जाके मैं इस विजुअल के साथ ग्रुप कर दूंगा. राइट, दिस इज वन डिफरेंट विजुअल, दिस इज वन डिफरेंट विजुअल, एंड देन हाउ टू ग्रुप इट? फॉर्मेट में, ग्रुप में जाके वी कैन डू द ग्रुपिंग. Right, now whenever my selection changes, as per the selection my title is changing. But selected value function अगर यूज कर रहे हो, definitely there should be one selection. बिना selection का वो काम नहीं करेगा. मतलब it will not store any value basically. अगर for example I am not selecting anything, तो आपका SV जो है, SV में कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है, because you have not selected anything, right? So that's why it is giving you blank. So selected value when you are using, definitely there should be one selection. More than one selection भी काम नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 16 and 17 सेलेक्ट करता हूँ. ओके, selected value will always take a single selection. तो वैल्यू आ रहा है लेकिन ऊपर तो लिखा हुआ नहीं है. हाँ, ये वैल्यू कौन सा आ रहा है? 15, 16 और 17 का आ रहा है. बट सेलेक्टेड वैल्यू में तो एक ही वैल्यूबल स्टोर होगा ना, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है, 16 को लेना है या 17 को लेना है. इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो सेलेक्टेड वैल्यू विल वर्क ओनली विथ सिंगल selection. Right? Sometimes, let me see काम करेगा कि नहीं. टाइटल ये जो fx है ना, ओके, वी कैन ट्राई. आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट. डायनामिक टाइटल, राइट. सो अनग्रुप. ओके, नाउ हमने क्या किया है, इसमें इनबिल्ट हमने अप्लाई किया है, तो दो अलग विजुअल भी हम लोग नहीं ले रहे हैं. बट दिस मे नॉट वर्क इन ऑल द केसेस. ठीक है, दिस मे वर्क, दिस मे नॉट वर्क. हाँ, ये जो टाइटल में जाके मैंने विजुअल है, मैंने विजुअल टाइटल में गए, यहाँ पे जो एफएक्स था, टाइटल के साइड में एफएक्स करके एक सिंबल था. लेट मी रिमूव इट एंड डू इट अगेन. ठीक है, दिस इज माय कार्ड विजुअल. ठीक है, कार्ड विजुअल का मैंने टाइटल में गया. राइट, यहाँ पे हम कुछ भी देंगे वो दैट विल बी योर स्टैटिक टाइटल. यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं 2014 करके, दिस विल नेवर चेंज. दिस इज ए स्टैटिक टाइटल. अगर डायनेमिक करना है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो एफएक्स है ना, एफएक्स इज नथिंग बट फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पे जाके यू कैन सेलेक्ट द फील्ड वैल्यू. कौन सा फील्ड हमने बनाया था? डायनेमिक टाइटल करके एक फील्ड मैंने बनाया था. राइट, सो डायनेमिक टाइटल में जो वैल्यू आएगा दैट विल बी योर टाइटल. राइट, व्हेन आई क्लिक ऑन ओके, दिस विल बी योर टाइटल. यस सर. ओके, इसको फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो. तो कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या सिलेक्ट नहीं करेंगे तो? मतलब साइजेस को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो लाइन लिखता है. हाँ, क्योंकि सेलेक्टेड वैल्यू विल नॉट स्टोर एनीथिंग. राइट, ओके, फॉलोइंग. यस नाउ सर. another Yes. scenario. For example, based on my selection, I want to see the previous year value. ठीक है, मतलब अगर मैं 2015 को सेलेक्ट करता हूं, मुझे 2014 का वैल्यू आना चाहिए. और वेरिएबल बना के उसके प्रीवियस तो रिक्वायरमेंट क्या है? बेस्ड ऑन माय सिलेक्शन आई शुड गेट द प्रीवियस ईयर वैल्यू. फॉलोइंग. सिलेक्टेड -1 कर देंगे सर. नहीं नहीं, पहले रिक्वायरमेंट समझ में आया कि नहीं वो बताओ. यस सर. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डू दैट वन. ओके, हम लोग एक नया मेजर लिखेंगे, प्रीवियस ईयर सेल्स इक्वल टू. ओके, पहला वेरिएबल क्या होगा?
ओके, सिलेक्टेड वैल्यू इक्वल टू सिलेक्टेड वैल्यू डिम डेट टेबल से ईयर कॉलम। ये रूम पे चलेगा सिर्फ मौका करना है। ओके, सो यहाँ पे ये क्या स्टोर करेगा? राइट नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू स्टोर? ये सर 2014-15। 2015 it is going to store, right? यस सर। Now what we want? प्रीवियस ईयर का सेल चाहिए, राइट? तो क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लिखेंगे, व्हाट? पी वाई। ओके, प्रीवियस ईयर इक्वल्स SY -1। एस वाई -1। यस यस भी यस। सॉरी, सिलेक्टेड वैल्यू -1 होगा नो सफर नहीं नाम पर बुझ पाए कौन लिखी भी कहो प्रीवियस वाला एक फंक्शन भी तो होता है सर। प्रीवियस ईयर वाला फंक्शन, यस सर। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला फंक्शन काम करेगा, बट लेट अस डू इट विद सिलेक्टेड वैल्यू। ओके, लेट अस ट्राई टू डू इट विद सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक है? सो मुझे क्या चाहिए, जब मैं 15 सेलेक्ट करूंगा 14 आना चाहिए। यहाँ पे क्या स्टोर हुआ है? 15 स्टोर हुआ है, राइट? तो अगर मैं SV -1 बोलता हूँ, ठीक है, तो SV में क्या स्टोर हुआ है? 2015। 2015 -1 क्या आना चाहिए? 2014। 2014 आना चाहिए। लेट अस सी वेदर वी आर गेटिंग और नॉट। I think it will work. राइट? Yes sir. ओके, क्या हो रहा है हमारा? बेस्ड ऑन माई सिलेक्शन प्रीवियस ईयर वैल्यू आ रहा है, ऐसा ना? राइट? Yes sir. उसके बाद Yes, sir. बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या था? सेल्स आना है, Yes sir. राइट? सेल्स आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे, प्रीवियस ईयर सेल्स। कैसे लिखेंगे? हम्म सम यहाँ पे क्या लिखूं? SV माइनस PY क्या होगा? पहली बात, सम के अंदर इट विल टेक ओनली द कॉलम। सिंटैक्स क्या है सम का? ओनली कॉलम। बट स्टिल आपके हिसाब से अगर ये काम करेगा तो क्या होगा? SV में क्या स्टोर हो रहा है? 2016। PV में क्या स्टोर हो रहा है? 2015। तो 2016 माइनस 2015 इक्वल टू 1। 1 का सम क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ, तो दिस इज नॉट द वे यू नीड टू डू। सिंपल सा है, ज्यादा मत सोचो। selected value SP equal to PY. कौन लिखी बेटी? ओके, SP कॉलम नेम दबार अच्छी ना, सिंटैक्स होची कॉलम नेम। ओके, जनरली हाउ डू यू कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 2015? Sum by using sum. 2015 का सेल मुझे चाहिए, हार्ड कोड करो, कुछ डायनेमिक करने की जरूरत नहीं है। 2015 का मुझे सेल्स चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू राइट? हाँ, वेरी गुड। कैलकुलेट सम ऑफ Sales सेल, year is equal to इसके बाद क्या? comma कॉमा, year
ईयर इक्वल टू 2015 करेंगे, राइट? यस सर, ये आपको क्या वैल्यू देगा? 2015 का जो होगा। 2015 का सेल्स जो है वो दे रहा है, यस सर, राइट? बट ये डायनेमिक नहीं है, आप जो भी सेलेक्ट करोगे वो 2015 का सेल्स ही देगा, यस सर। ये सर वाला। इसके लिए वेरिएबल को पास कर देंगे बस। हाँ, तो ये वाला जो, हाँ ये वाला जो हमने हार्ड कोड किया है इसको डायनेमिक करना है। हाँ, बेसिकली दिस वैल्यू वी नीड टू मेक इट डायनेमिक। जब हम 2015 सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस शुड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू 2014। अगर मैं 2017 सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस शुड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू 2016, पी वाई को कर राइट? देंगे, पी तो वाई हम को। लोग अगर इसको पास करते हैं, ओके, यहाँ पे हार्ड कोड करने की जगह अगर मैं पी वाई पास करता हूँ, पी वाई में क्या स्टोर हो रहा है? सेलेक्टेड वैल्यू -1, राइट? इसका मतलब क्या है? 15 जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला क्या बनेगा? 14 बनेगा। मैं जब 14 का सेल्स आ जाएगा। 2017 सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला क्या बनेगा? 2016 बनेगा, 16। राइट? Yes, sir. राइट। सो बट ये सर वाला 2014 में फिर गलत हो जाएगा, 2013 में 13 का दिखाएगा, 2013 का डेटा तो है ही नहीं हमारे पास। तो वो गलत नहीं है ना, डेटा नहीं हाँ है। मतलब, हाँ वो तो सही है, मतलब वर्क करेगा बट वहां पे ब्लैंक लिख के आएगा। हाँ, तो ऑब्वियसली वो अगर आप हार्ड कोड भी करते हो 2013 का, क्या आएगा आपको? कुछ नहीं आएगा, राइट? क्योंकि 2013 यस का सर, वैल्यू नहीं है आपके पास, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग। आपका डेटा के हिसाब से इट विल गिव यू द रिजल्ट, राइट? अभी सिमिलरली मुझे इसका टाइटल भी चाहिए, क्योंकि लोग अगर इसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? उनको लगेगा 2015 का डेटा आ रहा है, राइट? इफ somebody end user looks into this report, उसको क्या लगेगा? ये वैल्यू जो आ रहा है 2015 का आ रहा है लगेगा, सर नो? Yes, बट sir. मुझे टाइटल क्या देना है? 2014 आना है, यस सर। राइट? तो क्या करेंगे? नया बॉक्स बना लेंगे, फिर इसी में टाइटल में याद करिए। क्या करूं वो बताओ पहले। इसके लिए सर पहले एक नया मेजर बना लीजिए। हाँ, पहले क्या बनाना है आपको? एक नया मेजर मेजर बनाना टाइटल है। के लिए। तो फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर सेल्स टाइटल, हम्म, ठीक है? हाँ, इक्वल्स, नेक्स्ट। हाँ, हम्म वेरिएबल वेरिएबल पी वाई एस पी वाई, एस ओके पी वाई ओके, पी वाई ओनली पी वाई सर, ओनली हाँ प्रीवियस ईयर सर ना, सेल्स हाँ, इज इक्वल टू सेलेक्टेड हम्म वैल्यू, और सेलेक्टेड वैल्यू हमारा ईयर है, तो हम्म ईयर कर लेंगे। हम्म अम, ठीक है, नया लाइन, हम्म नया लाइन में कोई भी वेरिएबल बना लेंगे हम्म प्रीवियस। अच्छा हाँ ठीक है, इसको शो करना ना, हम्म तो को टाइट टी आई टी या कुछ भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, सुना, ये दिस इज नॉट द प्रीवियस ईयर। आप जो सेलेक्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली दैट वैल्यू ओनली इट विल सेलेक्ट, राइट? यस 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 तो सर, दिस करंट शुड ईयर, बी करंट ईयर, करंट करंट ईयर। ईयर होना चाहिए, यस सर, राइट? जो सेलेक्ट कर रहे हो वही यस सिलेक्ट सर, करो, तो दैट इज करंट करंट ईयर। ईयर। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, इट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम, बट हाँ यस, मतलब हाँ, मीनिंगफुल, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। राइट? तो अभी मुझे यहाँ पे प्रीवियस ईयर चाहिए, यस सर, तो क्या अभी करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे CY-1, CY-1, ओके। नेक्स्ट एक और वेरिएबल बनाता हूँ। जहाँ पर दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। हाँ, तो ईयर एंड एंड PY पी वाई, रिटर्न रिजल्ट, दैट्स इट। राइट नाउ यहाँ पे टाइटल कैसे देंगे? जनरल टाइटल, एफएक्स,
क्या बनाया था हमने? PYS टाइटल, राइट? राइट, 2014 आ रहा है। तो बेस्ड ऑन माय सिलेक्शन इट इज टेकिंग द प्रीवियस ईयर वैल्यू, राइट? इसको हम लोग इफ यू वांट वी कैन डू इट इन ए सिंगल मेजर ऑल्सो, मतलब सिंगल वेरिएबल में भी बना सकते थे, राइट? दिस वन, इतने सारे वेरिएबल बनाने की जरूरत है क्या? नो सर। To make you understand, I have written these many variables. अगर maybe I can write it directly like this, इसी को py बोल दूंगा और इसको -1 -1 बोल दूंगा, राइट? और यहाँ पे क्या दूंगा मैं? इसको py करेंगे, still it will give you the same result only, राइट? या फिर रिटर्न में सर डायरेक्ट वो जो ऊपर वाली कंडीशन लगाई कॉन्कैटिनेशन वाला, रिटर्न में भी तो लगा सकते हैं। हाँ, तो ये वाला जो है I can put it here also, और इन दोनों की जरूरत ही नहीं है मुझे, राइट? ऐसा भी कर सकता है, यस सेम ही आएगा। या फिर ये पूरा हम हटा के like this also I can do in a single line also I can give you the dynamic title, right? यस सेम ही करेगा ये, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। आई हैव रिटन मल्टीपल वेरिएबल्स, वंस यू आर कंफर्टेबल राइटिंग देन यू कैन राइट इट इन ए सिंगल लाइन आल्सो। यस, नो, ऑनलाइन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, राइट। नाउ हम लोग इसको प्रीवियस ईयर फंक्शन यूज करके भी कर सकते थे, राइट? यस सर। यहाँ पे जो हमने प्रीवियस ईयर फंक्शन हमने जो यूज किया था वो यूज करने से भी आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर का वैल्यू ही आ जाएगा, राइट? बट व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस वन इज इट विल नॉट बी ऑलवेज प्रीवियस ईयर ही नहीं होगा। जैसे कि नाउ आई वांट, अगर मैं सेलेक्ट करता हूं 2016, आई नीड 2014 डेटा। यस If सर। I am selecting 2017, I need 2015 डेटा, राइट? तो क्या करेंगे हम लोग? -2 -2 करके हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे -2 अगर कर देंगे वी विल गेट द प्रीवियस का प्रीवियस ईयर का आराम से आ जाएगा, बट बाय यूजिंग प्रीवियस ईयर यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट। ओके, हाँ, सिर्फ सिंगल प्रीवियस ईयर ही आएगा वहां पे, बट यहाँ पे हम डायनेमिकली यू कैन गो 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, जितना भी ऊपर जाना है जा सकते हो, जितना भी नीचे आना है जा सकते हो। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, नो, ये वाला जो है टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। ओके, विद द सेम कॉन्सेप्ट यू कैन गो एनीवेयर, पीछे जा सकते हो, आगे आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन में और भी बहुत सारे फंक्शंस है, पैरेलल पीरियड है, डेट डिफरेंस है, बहुत सारे फंक्शंस है, वो सब हम लोग याद नहीं रख पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, यू विल नॉट बी एबल टू पुट ऑल दोस थिंग्स ऑल द टाइम, बट बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन गेट ऑल द रिजल्ट जो भी आपको चाहिए। ओके, इफ somebody ask you also in interviews, अगर कोई पूछता है पैरेलल पीरियड कैसे काम करेगा या फिर डेट डिफरेंस कैसे काम करेगा, you should tell same thing, I can do it by using variables. Okay, I generally don't remember all those things, I know a concept, by using that concept आप जो भी requirement दोगे I can do that one based on selected value. ठीक है, ऐसा नो? यस नाउ फॉर्मूले तो सर 12-1300 है, मैंने वेबसाइट में देखा था। हाँ, वो सारे कोई याद नहीं रख पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, यस सर। ठीक है? जो द कॉन्सेप्ट्स और जो फॉर्मुलास में मतलब दिखा रहा हूं, दोज आर द मेन थिंग्स यू शुड डेफिनेटली नो। उसके अलावा और भी हजारों फॉर्मूला है दैट आई ऑल्सो डोंट नो, नोबडी नोज दैट, ठीक है? द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग इन दिस, मतलब ये जो डैक्स में जितने हम लोग कर रहे हैं ना, उसको यूज करके आप 99% ऑफ द रिक्वायरमेंट आप आराम से कर सकते हो। कुछ कुछ आता है नया जहां पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेट। ओके, राइट।
Yes. Now my requirement is, now I will not tell, you need to tell me based on my selection. अगर मैं 2016 सेलेक्ट करता हूँ, 2014 प्लस 15 प्लस 16 तीनों का डेटा दिखाना है. अगर मैं 2017 सेलेक्ट करता हूँ, 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 दिखाना है. अगर मैं 18 सेलेक्ट करता हूँ, 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 दिखाना है. Is the requirement clear? Yes, sir. Online. Got it, sir. Okay. हाँ. Now Yes, how sir. to do, tell me. इसमें सर टोटल अकाउंटिंग रहेगा फिर अभी जहाँ पर है कुछ. ओके. लास्ट ऑल ईयर सेल्स, मतलब जहां से जो भी सेलेक्ट करता हूँ वहां का ऊपर जितना भी डेटा हो सब कुछ मुझे दिखाना है. ओके. हाउ टू डू. पहले आप क्या करोगे, मतलब व्हाट शुड बी योर अप्रोच. ठीक है. कोई भी एक सिलेक्शन ले लो. ओके. 2016 मैंने सिलेक्शन लिया है. Yes, sir. राइट. सो जब मैं 16 सेलेक्ट कर रहा हूं, मुझे डेटा क्या दिखाना है, 14 प्लस 15 प्लस 16. राइट. उसको हार्ड कोड कर दो पहले. ट्राई टू हार्ड कोड इट. ओके. हार्ड कोड कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल सेल्स करके दे रहा हूँ. ठीक है. तो मुझे अभी 2014 का, 15 का, 16 का, तीनों साल का सेल्स चाहिए. तो हाउ डू यू राइट. Sales sum 2040 bracket कैलकुलेट. calculate. कैलकुलेट से स्टार्ट होगा. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Sum of sales. Sum of Sum sales. of sales. उसके बाद Year. Dim date. Dim date. का ईयर. Equal to हम्म वो 2014 15 16 क्या लिखूं यहाँ पे. 2014 2014 डबल पाइप्स 3 ईयर फिर 2015 फिर ऐसे 2016 तो या इसको इज करके भी लिख सकते हैं. यस इन करली ब्रैकेट 2014 2015 2016 1015 हो गया. राइट. लाइक दिस आई कैन राइट. यस सर. ओके. तो अभी क्या डेटा आएगा हमें, 14 15 16 तीनों साल का सेल्स आएगा. 3 years का सेल यहाँ पे आ रहा है. ओके. Yes, सही आ sir. रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा. 14 पे जाएंगे 15 पे जाएंगे 16 पे जाएंगे. एक और मैं ये बना रहा हूँ. यहाँ पे Yes, मैं sir. आई एम गोइंग टू गिव द सेल्स. Yes, sir. डायरेक्ट सेल्स दे रहा हूँ. ये 2016 का सेल है. अगर मैं 15 और 14 को सिलेक्ट करता हूँ, मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, 1.56 आ रहा है. Yes, राइट. sir. तो दैट मीन्स मेरा Correct है. सिलेक्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ही आ रहा है, मतलब 3 साल का ही आ रहा है यहाँ पे. राइट. Yes, sir. अभी इसको मुझे डायनेमिक करना है. ओके. इसको मुझे डायनेमिक करना है. कैसे करेंगे. तो अभी आपको, आपका क्या होना चाहिए, मुझे एक वेरिएबल ऐसा बनाना है जो वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ तो इट शुड टेक 14 15 16 तीनों को लेना है. ओके. तो Yes, आपको sir. अभी सोचना पड़ेगा कि मुझे ऐसा वेरिएबल एक बनाना है जो जिसका वैल्यू 14 15 16 लेना चाहिए व्हेन आई एम सेलेक्टिंग 2016. अगर मैं 17 सेलेक्ट करता हूं, ऑटोमेटिकली इट शुड पिक 14 15 16 17 चारों वैल्यू लेना है. इसी को कैन वी राइट इट इन सम अदर वे. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 14 15 16 हार्ड कोड ही करना है. एनी अदर वे वी कैन राइट. ऐसे लिखा जाए. 14 15 16 को कैन अच्छा वी. हाँ सर. एक तरीके से और लिख सकते हैं. हाँ.
उसमें सेलेक्टेड वाला लगेगा, सेलेक्टेड वाले में नहीं, अभी मैं सेलेक्टेड छोड़ दो, अभी अच्छा सेलेक्टेड छोड़ दो। फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू डू द हार्ड कोडिंग। ओके, आई एम नॉट मेकिंग इट डायनेमिक। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज हम लोग दे रहे हैं, ये 3 मुझे नहीं देना है, एक ही नंबर देना है, एक ही नंबर देना है, बट ये तीनों वैल्यू लेना है। ओह बहुत अच्छा। आई नीड टू गिव ओनली 1 ईयर, एक ही नंबर मुझे देना है, बट ये तीनों को अपने आप लेना है। कैन वी डू समथिंग? 2014 to I think 2015 गोटे ईयर ही दबार अच्छी कौची ना। सर मैक्सिमम डेट देला होगी। हाँ, तो कैसे देंगे? सेलेक्टेड में मैक्स डाल दे। सेलेक्टेड इलेक्टेड मत बोलो अभी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू द हार्ड कोडिंग। मैक्सिमम किसने बोला? सर अभिषेक मैंने सर। बोला। हाँ, अभिषेक। तो मैक्सिमम मतलब आधा करेक्ट है, बट हाउ टू यूज दैट वन? मैक्सिमम जो होगा सर हमारे सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा। सिलेक्शन छोड़ दो, अभी हम लोग हार्ड कोड कर रहे हैं। हार्ड कोड करना है, 2014 15 16 लेना है, एक साल का नंबर मुझे देना, एंड सम ऑपरेटर्स आई नीड टू यूज, और मुझे 14 15 16 तीनों को लेना है। समेशन, समेशन का साइन, समेशन क्या? साइन होता है ना समेशन वाला जो होता है एम टाइप का उल्ट, करने से क्या होगा? वो काम नहीं, जो करेगा। जो मैंने सिखाया है उसी में से बताओ। समेशन वमेशन मैंने कुछ नहीं बोला, वो अप्लाई भी नहीं होगा यहाँ पे। आई एम नॉट आस्किंग समथिंग न्यू। सर मैक्सिमम डेट 31 दिसंबर 2016 ही दे देंगे। ओके, उसको कैसे लिखेंगे? ओके, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ईयर की डेट गिव डेट से ओके, कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, डिम डेट ईयर लेस देन और इक्वल टू 2016, ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। हाँ, तो ये क्या लेगा अभी? 14 15 16। 14 15 16 ही लेगा ना। 13 भी आएगा इसमें, बट वी डोंट हैव डेटा फॉर 13 एनीवे, इट विल नॉट टेक, राइट? तो क्या हो रहा है, ये मैं लेस देन और इक्वल टू 2016 बोलने से क्या हो रहा है? इट विल स्टिल गिव मी द सेम रिजल्ट, राइट? मतलब क्या ले रहा है ये? 14 भी ले रहा है, 15 भी ले रहा है, 16 भी ले रहा है, राइट? यस सर। यस तो सर। दिस इज यस द सर। करेक्ट वन। अभी इसको डायनेमिक करना है, 2016 को डायनेमिक करना है। तो क्या करेंगे हम? जहाँ पर सिलेक्टेड लगाएंगे। सेलेक्टेड वैल्यू ईयर। तो यहाँ पे क्या सिलेक्शन होगा? अभी जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं दैट विल बी स्टोर्ड हियर। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो भी सिलेक्टेड होगा उससे नीचे सारे चाहिए मुझे, राइट? ऐसा नो? यस सर। यस सर। अगर यस मैं सर। यहाँ पे एसपी दे देता हूँ, तो नाउ व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू गेट? 2004 मतलब जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उससे कम के, कम या बराबर में। 16 जब सेलेक्ट करता हूँ तो 14 प्लस 15 प्लस 16 का वैल्यू आएगा। अगर 17 सेलेक्ट करता हूँ तो 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 आएगा। अगर 18 सेलेक्ट करता हूँ, 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 आएगा। 17 और 18 सेम वैल्यू दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि 2018 में हमारा कोई सेल है ही सर। नहीं, यस राइट? सर। ओके, यस सर। तो बेस्ड ऑन माई सिलेक्शन वहां तक सब कुछ हम लोग दिखा रहा है, राइट? यस सर। फॉलोइंग और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, वैसे ही अगर मुझे सिर्फ 2 साल पीछे जाना है, इफ आई एम सेलेक्टिंग 2018, आई शुड गेट 17 प्लस 18, या फिर व्हेन आई एम सेलेक्टिंग 17 आई शुड गेट 16 प्लस 17। सेलेक्टेड वैल्यू -1 ना, put 1 year only above we are going, but I want both the result, मतलब सेल्स दोनों को चाहिए। तो आपका ये वाला कंडीशन यहाँ पे चेंज होगा, कैसे होगा?
ओके, आई थिंक वी नीड टू क्लोज। ठीक है, फॉर यू आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट। क्या करना है आपको? बेस्ड ऑन माई सिलेक्शन, मुझे आई वांट टू सी, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलेक्टिंग 2017, आई शुड सी 15 + 16 + 17। -2 years Yes, sir. Assignment, if I select 2017, I should get 2015 + 2016 + 2017। इन तीनों का सेल्स मुझे चाहिए। क्लियर? बट नॉट इन ए कार्ड विजुअल। ओके, नॉट इन ए कार्ड विजुअल। मुझे कहां पे चाहिए? आई वांट इट इन ए टेबल या मैट्रिक्स में चाहिए। यहाँ पे मुझे कैटेगरी, मैट्रिक्स में कैटेगरी, सब कैटेगरी, रीजन। ओके, तो यहाँ पे आई वांट टू शो द सेल्स। ठीक है, ये जो वैल्यूज आ रहे हैं सेल्स का वैल्यू, ओके, ये वाला कैसा आना है? ओके, बेस्ड ऑन माई सिलेक्शन। अगर मैं 17 यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, आई शुड गेट हियर 15 + 16 + 17 का डेटा। मतलब सेंट्रल रीजियन में फर्नीचर का बुक केसेस 15 + 16 + 17 का सेल क्या हुआ है? Yes, sir. रिक्वायरमेंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे मुझे टाइटल भी चाहिए डायनेमिकली। टाइटल में क्या होना चाहिए? इफ 2017 अगर सेलेक्ट होता है तो टाइटल शुड बी years between 2015 and 2017। टाइटल ऐसा आना है। दिस शुड बी माय टाइटल। Yes, sir. ओके, अगर मैं 18 सेलेक्ट करता हूँ, ये टाइटल भी चेंज होगा, 16 to 18 आएगा। और ये वाला क्या होगा? 16 + 17 + 18 आएगा। फॉलोइंग? Yes, sir. ओके, लेट्स क्लोज फॉर टुडे। आई हैव ए क्लास नाउ, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ओके, आई एम क्लोजिंग फॉर टुडे। थैंक यू गाइस। Thank you, कोई sir. डाउट्स है तो कल हम लोग परसों हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके, राइट, थैंक यू।